नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। बने रहिए हमारे साथ। 100 दिन 100 प्रयास प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा। गम किसी दिल में सही गम को मिटाना होगा। मशहूर शायर कैफी आजमी की कविता की ये पंक्तियां को साकार कर रही है मिजवा वेलफेयर सोसाइटी की टीम। शबाना आजमी की सामाजिक संस्था मिजवा वेलफेयर सोसाइटी 2 अप्रैल से ही इस वैश्विक महामारी कोरोना में गरीबों तक विभिन्न तरीके से मदद पहुंचा रही है। मिजवा वेलफेयर सोसाइटी को इस महामारी में काम करते हुए 100 दिन पूरे हो चुके हैं और संस्था ने 100 दिन 100 प्रयास नामक रिपोर्ट जारी किया है, जिसे आप www.mijwa.org पर देख सकते हैं। संस्था के अध्यक्ष श्रीमती शबाना आजमी ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना महामारी में मिजवा वेलफेयर सोसाइटी की टीम बहुत एक्टिव रही है और लोगों को जिस भी तरह की मदद की जरूरत थी उसे मुहैया कराने का पूरा प्रयास की है और अभी तक हम लोग 1,12,500 लोगों तक पहुंचे हैं, जिसमें 1,35,000 किलोग्राम अनाज का वितरण किया गया है। 4,50,000 मास्क का वितरण किया गया, जो कि मिजवा वेलफेयर सोसाइटी की लड़कियों ने ही बनाया है। सैनिटरी नैपकिन्स 1,200 पीस एवं साबुन 7,500 पीस का वितरण किया गया। अभी तक हम लोग आजमगढ़ जिले के 55 गांव तक पहुंचे हैं और 5 प्रदेश उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली एवं महाराष्ट्र में भी विभिन्न तरीके से मदद पहुंचाई गई है। मिजवा वेलफेयर सोसाइटी एनडीआरएफ के साथ में भी विभिन्न तरीके से काम करे। इस बाबत क्या कुछ कहा शबाना आजमी ने, आपको सुनवाते हैं। Hello, my name is Shabana Azmi, and I am the president of an NGO, Mijwa Welfare Society, that works for the empowerment of rural India with a focus on the girl child and women. We do this through education, through employment generation, and skill development. During COVID 19, Mijwa Welfare Society has been very active in providing immediate relief measures and also developing long term programs that I'd like to share with all of you. The work that we have done in the 100 days of the pandemic are as follows. This is the data. The people reached is 1,12,500. Grains distributed in terms of kilograms is 1,35,000. We have distributed 45,000 three-layered masks, which have been made by our girls and our people at the sewing center. We have also distributed sanitary towels, 1,200, and soaps, 7,500. This has been possible because of a very dedicated team led by our dynamic CEO, Vinod Pandey, and I am thankful to all of them for doing this work, often at risk of themselves. What we have done is reached out to 55 villages and states such as UP, Bihar, Rajasthan, Delhi, and Maharashtra. We have worked with 22 village panchayats, also with the local bodies and the National Disaster Relief Force. We've been able to do this seamlessly because we've held hands with all these organizations. But above all, this has only been possible because you, our supporters and friends, have come forward once again to realize the gravity of the situation and also have faith in Mijwa Welfare Society as an organization that keeps the promises that it makes and even does more. So thank you very much. This has been a learning experience because people have gone through what is really hell. We have never seen a tragedy of such proportions. I mean, we weren't born when the partition of India took place, but the sights of these migrant workers walking back home barefoot with their children and wives by their sides is really deeply, deeply disturbing. Of the work that we have done, I think the most important is the Rozgar Dhaba. Because this is an information center, a hub where
for the returning migrants and also for the people in the villages, you get all kinds of information that you need. Where jobs are available, what the expected salaries can be, how an Aadhaar card should be made, how a ration card should be made, how a voter's card should be made, how various forms that need to be filled to access government policies should be filled. We've seen very often that people never are able to access the policies that have been made for them because they don't know how to get this information. Information is empowerment. And I really think Mijma Welfare Society, by creating these Rozgar Dhabas, which are now going to move out into various villages, is a very important step in the right direction. So friends, supporters, organizations, NGOs that have come forward to hold our hands, once again, I am very proud to share that all our financial details are available totally transparently on our website and you can access them. We do hope that this will strengthen your belief in us, and I believe somewhere this team has been able to do everything so selflessly because the founder of Mijma Welfare Society, my father Kaifi Azmi, had a sher which became his dictum, which is प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही, गम को मिटाना होगा. थैंक यू. जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा जनपद में कोविड-19 के बढ़ते केस के दृष्टिगत जनपद में कंटेनमेंट जोन में और सख्ती करने एवं जागरूकता अभियान चलाए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. इस क्रम में जिलाधिकारी द्वारा स्वयं जूम ऐप के माध्यम से कैंप कार्यालय पर प्रथम शिफ्ट में समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ एवं द्वितीय शिफ्ट में पुलिस के समस्त संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया गया. जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों को भी कोविड-19 से बचाव हेतु प्रशिक्षित करें. जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर एवं सभी पुलिस अधिकारियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी की लड़ाई में अधिकारी एवं कर्मचारी सभी योद्धा हैं. यदि वे संक्रमित होंगे तो लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी. प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिविल जज प्रवर खंड आजमगढ़ ने बताया है कि जिलाधिकारी द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि कोरोना संक्रमित पाए जाने पर दीवानी न्यायालय परिसर कंटेनमेंट जोन में है. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जब तक न्यायालय परिसर कंटेनमेंट जोन में रहेगा तब तक न्यायालय बंद रहेगा. ऐसी स्थिति में न्यायिक परिसर के कंटेनमेंट जोन में रहने तक जनपद न्यायालय आजमगढ़ बंद रहेगा. इस अवधि में सभी न्यायालयों द्वारा सुनवाई हेतु नियत प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के आधार पर सामान्य स्थितियाँ नियत की जाएंगी. प्रकरणों की नियत तिथियों से संबंधित सूचना NJDG पोर्टल एवं ई-कोर्ट ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है. जनपद में कोरोना की कड़ी टूटने की नाम ही नहीं ले रही है. आज फिर कोरोना मरीजों की संख्या में 17 और जुड़े हुए हैं. मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व प्रेषित सैंपल्स में से 17 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति हरा के चुंगी, एक व्यक्ति काशीराम आवास कोतवाली, एक व्यक्ति भदनपुर अतरौलिया, 2 व्यक्ति कोटकिला आजमगढ़, एक व्यक्ति रौनापार हरैया, 3 व्यक्ति ठेकमा, 1 व्यक्ति छितौनी अतरौलिया, 2 व्यक्ति काली चौरा रहदोपुर, 2 व्यक्ति राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ व 2 व्यक्ति कुर्मीटोला एवं 1 व्यक्ति रहदोपुर का रहने वाला है. सीएमओ ने कहा कि संबंधित तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत कंटेनमेंट जोन घोषित होगा. सीएमओ ने कहा कि अब तक कुल 370 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं. वर्तमान समय में 115 एक्टिव केस हैं, 245 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 10 मरीजों की मौत हो चुकी है. आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के मालटारी गांव के ग्रामीणों ने दबंग ग्राम प्रधान पर रास्ते को रोकने का आरोप लगाते हुए डीएम से शिकायत की है. जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि काफी वर्षों से गांव से मालटारी बाजार आने जाने के वाले रास्ते को गांव के दबंग ग्राम प्रधान व उनके भाई और उनके पिता ने दीवार खड़ी कर दी है और बाधित कर दिया है, जिसके चलते गांव के लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. विरोध करने पर जानमाल की धमकी दी जा रही है. ग्रामीणों ने डीएम को शिकायती पत्र सौंप मांग किया है कि जनहित को देखते हुए बाधित किए गए रास्ते को खुलवाया जाए और दोषियों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए. हाँ सर, मेरा नाम सूर्यभान सरोज है. मेरे पिता का नाम श्री बद्रीराम
क्या किस मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं? ये सर हम लोगों की रास्ता बंद कर दी गई है। हमारे गांव के ग्राम सरासागर मालटारी के ग्राम प्रधान मुकेश राज तथा इनके भाई और पिता ने दबंगई के विरुद्ध पर पूरे रास्ता को बंद कर दिया है, ईंट की दीवार बना करके। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन और राजस्व प्रशासन के द्वारा उस रास्ते को खुलवाया, अवैध अतिक्रमित रास्ते को खुलवाया जाए और पूर्व की भांति रास्ते को कायम कराया जाए। हमारी यही मांग है। जिलाधिकारी से मिले, क्या बोले? जी हाँ, हमने मुख्य राजस्व अधिकारी महोदय को इस शिकायत के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है और उन्होंने प्राप्त कर लिया है। क्या बोले वो? उन्होंने ले लिया है, कहा कि कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के सरदौली गरथौली बुढ़नपुर में हुई मारपीट में पुलिस द्वारा एकपक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए घायल पीड़ित एसपी से न्याय की गुहार लगा रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ित नंदलाल निषाद ने बताया कि बीते 10 तारीख को गांव के दबंग प्रवृत्ति के लोग उसके दोस्त व उसके भाई को मारने पीटने लगे। किसी तरह वह जान बचाकर घर पहुंचा तो अगले दिन लाठी डंडे से लैस होकर घर पहुंची और घर पर मौजूद उसके विकलांग भाई के साथ सभी लोगों ने मारपीट किया। इसकी सूचना पीड़ित द्वारा डायल 112 और 108 पर दी गई। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से उसके भाई को जिला अस्पताल के लिए भर्ती कराया गया। इस दौरान मुकामी थाने की पुलिस मेडिकल कराने के लिए बुलाया। इस दौरान उसके पिता को पुलिस ने बैठा लिया और उसके विकलांग भाई को छोड़ दिया। पुलिस ने ही उनकी शिकायत दर्ज की और न ही मेडिकल कराया। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नाम आपका? चंदन निशाम। कहाँ के रहने वाले हैं? सरदौली गरथौली बुढ़ानपुर। थाना कौन सा है? रौनापार है। अच्छा, कैसे विवाद हुआ, कैसे मारपीट हुआ आप लोगों को? सर मेरा भाई टॉयलेट करने गया था और उनके रामू सिंह के बच्चे वहाँ पे भंकसबाजी कर रहे थे और वो गया तो उसकी मोबाइल सब छीन लिए और उसे मारने लगे और पानी में डुबोने जा रहे तो चिल्लाया। फिर मैं कॉल किया तो छीना झपटी में उसका कॉल रिसीव हुआ तो आवाज़ गाली गलौज की आ रही थी तो यहाँ सब दौड़ के गए हैं तो वो सब मारने लगे। फिर सुबह हुई, उसके बाद वो सब लाठी डंडा लेकर आए और हम सब घर में बैठ के बातें कर रहे तो उसके बाद आके पीटने लगे। पीट उठ के सब पैसा भी ले गए हैं और मारे हैं, मोबाइल ले गए हैं। नहीं तो थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही? थाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। महिलाएं भी बंद है ना? महिलाएं भी बंद हैं। पुलिस वाले आए थे और उनको गाली गलौज दे के और उन सब पकड़ के ले गए हैं। महिलाएं कौन है आपकी? महिलाएं हैं, हमारी सिस्टर है और हमारी आंटी है और बगल की एक आंटी है। उन लोगों को पकड़े कि नहीं पकड़े? किनको? जेल में है। वो लोग सब जेल में हैं। चालान काट दिए हैं। कौन सा 300 कौन सा मुकदमा है? अच्छा, अब कप्तान साहब के किस लिए आए थे आप लोग? सर हमें न्याय चाहिए इसलिए आए थे। न्याय के लिए आए थे जी। क्या चाहते हैं आप? सर मैं चाहता हूँ कि जो हमको मारे हैं और उनको पकड़ा जाए। अभी पकड़े नहीं गए क्या? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है सर। और उल्टा हमें पुलिस आती है, गाली देती है। रानी की सराय में ट्रांसफार्मर को लेकर ग्रामीणों ने जाम किया है। 24 घंटे में 2 बार ग्रामीण सड़क पर उतर गए। रानी की सराय के ऊजी गोदाम का यह पूरा मामला है, जहां पर उपकेंद्र पर जले 33 केवीए के ट्रांसफार्मर को लेकर 24 घंटे में 2 बार सड़क पर ग्रामीण उतर गए हैं। रविवार को रानी की सराय उपकेंद्र पर घेराव किया, जहां पुलिस ने लॉकडाउन का हवाला देकर वापस कर दिया था। सोमवार को ऊजी गोदाम चौराहे पर जाम लगा दिया। 1 घंटे तक जाम से दोनों तरफ वाहन की लंबी कतार लग गई। 1 सप्ताह पूर्व ट्रांसफार्मर जल गया था, जिससे 2 दर्जन गांवों की आपूर्ति ठप है। हालांकि रविवार की शाम को नया ट्रांसफार्मर आ गया, परंतु उपकेंद्र रास्ते पर पानी लगने से वहां पर पड़ा रहा। पुलिस प्रशासन फिलहाल भीड़ को समझाने में जुटी रही। लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार के निर्देश पर जिला अध्यक्ष लोजपा राजेश विश्वकर्मा राज के नेतृत्व में यातायात ट्रैफिक इंस्पेक्टर कौशल कुमार पाठक सहित एवं विकास प्राधिकरण आजमगढ़ के ड्राफ्टमैन ब्रजभूषण विश्वकर्मा के विरुद्ध इनके कार्यों के कारण व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक यातायात एवं सचिव आजमगढ़ विकास प्राधिकरण को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। श्री शिल्पकार ने कहा कि यातायात के संबंध में मुख्य बातें हैं कि आजमगढ़ के शहर में लगाए शहर के अगल बगल एवं चारों तरफ जाम का झाम लगा रहता है। अनेक हॉस्पिटल, अनेक शॉपिंग मॉल, अनेक प्रतिष्ठानों की वजह से इस समय वैश्विक महामारी कोरोना नामक बीमारी के दौरान के समय भी आज जाम का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ टीआई द्वारा गरीब कमजोर अति आवश्यक कार्य के लिए आने पर भी जबरदस्ती और उनका चालान काट दिया जाता है। ऐसे तमाम सवाल शिल्पकार ने उठाया। आइए सुनवाते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मैं शिवमोहन शिल्पकार प्रदेश अध्यक्ष
पिछड़ा एवं पिछड़ा प्रकोष्ठ लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। आज मेरे नेतृत्व में आजमगढ़ के ट्रैफिक इंस्पेक्टर एवं विकास प्राधिकरण के ड्राफ्टमैन ब्रिजभूषण विश्वकर्मा के विरुद्ध अपर पुलिस अधीक्षक एवं विकास प्राधिकरण के सचिव समेत माननीय मुख्यमंत्री, डीजीपी, कमिश्नर जिला अधिकारी समेत सभी लोगों को शिकायती पत्र सौंपा गया है, जरिए डाक द्वारा भेजा गया है और अपर पुलिस अधीक्षक यातायात को पत्रक जो है हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में दिया गया है और जिला आजमगढ़ के विकास प्राधिकरण सचिव को भी दिया गया है। उसमें आजमगढ़ के यातायात को प्रभावित संबंधित कारणों से जो यहाँ के ट्रैफिक इंस्पेक्टर कौशल कुमार पाठक हैं वो अपने कर्तव्यों को निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ उनके ऊपर थाना मुबारकपुर में आपराधिक मामले दर्ज हैं और गरीब जनता कहीं कहीं उनसे परेशान और तंग हो जाती है। कोई आवश्यक कार्य से जाता है, उसको जबरदस्ती चालान काटना और उसको तंग और परेशान किया जाता है। दूसरी तरफ आजमगढ़ के विकास प्राधिकरण के ड्राफ्टमैन ब्रिजभूषण विश्वकर्मा अपने को जेई कई उच्च अधिकारी बन जाते हैं, तमाम लोगों में जाकर मेरे नाम का प्रचलन कर उनको डर और भयभीत करते हैं, जिससे मेरे ऊपर अनेक आरोप लगने का कार्य हुआ है और ये अपने कर्तव्य को निर्वाह करने से बचने के लिए कहीं कहीं मेरे नामों का जिक्र करते हैं। ये ड्राफ्टमैन होकर भी जहाँ पे देखिए वहाँ बिल्डिंग वालों से कहीं न कहीं अपने को यही बताकर अपने जो कड़ी बनाए हुए हैं भ्रष्टाचारी का उससे जो है अवैध धन वसूली भी करते हैं। आज आजमगढ़ में 10 वर्षों से लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, इनके ऊपर कानून की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। ये अंगद के पांव की तरह जमे पड़े हैं, विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार को पनपा रहे। इन लोगों के विरुद्ध हम लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि इनके ऊपर जल्द से जल्द विधिसंगत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो, ताकि आम जनमानस में उत्तर प्रदेश सरकार की छवि उत्तम एवं उत्तीर्ण और अच्छी बनी रहे। इसी के साथ मैं अपने बारे में विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रामविलास पासवान। विद्युत विभाग की लापरवाही से संविदा कर्मी बुरी तरह झुलसा, हालत गंभीर है, जिसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना सिदारी थाना क्षेत्र के छतवारा मोड़ की है, जहां ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य चल रहा था, जिसके लिए विद्युत कर्मियों ने शटडाउन लेकर विद्युत सप्लाई बंद करा दी थी। संविदा कर्मी कालिका प्रसाद यादव ने शटडाउन लेकर ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य कर रहे थे। पोल पर से उतरने के बाद जब दोबारा पोल पर चढ़े और ट्रांसफार्मर का तार जोड़ ही रहे थे, तभी अचानक बिजली सप्लाई चालू हो गई, जबकि शटडाउन लिया गया था। बिजली की चपेट में आने से संविदा कर्मी बुरी तरह से झुलस गया। गंभीर अवस्था में अन्य साथी संविदा कर्मियों ने जिला अस्पताल ले आए, जहां हालत गंभीर होने पर उसे डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। विद्युत विभाग की लापरवाही से एक संविदा कर्मी की जान पर बन आई है। क्या नाम है आपका? शिव शंकर यादव। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम शाहबाजपुर कोसूजा। जिनको ये लाइन मारी है, हम संविदा कर्मी हैं, ये भी संविदा कर्मी हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं। ट्रांसफार्मर चढ़ाने के लिए छतवारा मोड़ पे शटडाउन लिया गया और इसके बाद ये सूखी बनाकर खाए, इसके बाद चढ़े, उसी समय बिजली आई और इनका एक्सीडेंट। क्या जब ये शटडाउन लिए थे तो वहाँ पे तो लिखित जानकारी दी जाती होगी कि हम लोग जब इनका एक्सीडेंट हुआ है तो तुरंत हम लोग इनको लेकर के हॉस्पिटल चले आए हैं। हाँ, तुरंत हम लोग हॉस्पिटल चले आए हैं और वहाँ शटडाउन लिखित लिए। तो इसमें तो बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। अब देखें, लापरवाही अगर होती नहीं तो एक्सीडेंट होता नहीं। अच्छा, आप दोनों लोग संविदा कर्मी हैं? हम संविदा कर्मी हैं। कहाँ पे तैनात हैं आप लोग? हम चंडेश्वर सब स्टेशन से। चंडेश्वर सब। ये घटना कब हुई है? ये घटना हुई है क्या बजे? 6 बजे। इसमें क्या बजे? 6 बज के कुछ मिनट पर हुई है, या 6 बजे के आसपास, पौने 6 यही इसी के बीच में हुई। तो जब ये शटडाउन लिए हुए थे, जब नीचे उतरे हैं
तो इन्होंने नहीं, ये सिट डाउन लिए और क्योंकि अब रोटी बनाकर खाए और इसके बाद पुनः लोग चढ़े, उसी समय बिजली आ गई। उसी में बिजली चालू कर गई। बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों की इसकी जानकारी हुई है? जानकारी हो गई है, एसडीओ साहब से बराबर संपर्क में हैं, जेई साहब भी बराबर संपर्क में हैं, कंपनी के लोग भी बराबर संपर्क में आए थे। हाँ जी, ओरियन सिको कंपनी से बराबर बात हो रही है, स्थिति लोग पूछ रहे हैं, एसडीओ साहब बराबर से लगे हुए हैं, जेई साहब भी बराबर लगे हुए हैं। आजमगढ़ जिले में एक विवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा लिया, जबकि घटना के समय परिवार के लोग घर में मौजूद रहे और उसे बचा नहीं पाए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर सास व पति को हिरासत में ले लिया है। आजमगढ़ जिले के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के हर्रई इस्माइलपुर गांव में नवविवाहिता 26 वर्षीय शिखा सिंह ने संदिग्ध परिस्थितियों में मिट्टी का तेल छिड़ककर अपने कमरे में आग लगा लिया, जबकि उस दौरान परिजन भी घर पर मौजूद थे। इसके बाद भी विवाहिता को बचा नहीं सका और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। विवाहिता के ससुर ने फोन से इसकी जानकारी उसके पिता सुरजीत सिंह को दी। सूचना मिलने के बाद वह घटनास्थल पर पहुंचे और दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए जैनपुर कोतवाली में तहरीर दी। इस दौरान पुलिस ने सास और पति को हिरासत में ले लिया है। विवाहिता की शादी 1 वर्ष पूर्व हुई थी। एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो भी विधिक कार्रवाई होगी वह की जाएगी। मेरा नाम सूर्यजीत सिंह उर्फ मिंटू। हमको कब की लड़की मालूम मरी हुई हमको मालूम नहीं हुआ। कलकत्ता से उसके ससुर फ़ोन किए 4:15 बजे कि क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। हम बोले कि अपने घर हैं। कहें कि आपकी लड़की हैप्पी जर की मर चुकी है। तो हम बोले कैसे, तो कहें हमको भी मालूम नहीं है, आप पहुँचिए मौका पर। तो हम पहुँचे, 2, 4, 10 लोग 20 लोग गाँव से गए। उसके पहले उस गाँव के लोग तमाम लोग थे, अपना पंचायत क्या कर रहे थे और वो सब माई बेटा मार के बगल वाले घर में रामजी सिंह के घर में और संजय सिंह के घर में वो छिपे थे। वो लोग छिपाए थे। पुलिस आई, उसके बाद पूरा अपने खोज खबर की। थाना क्षेत्र में मामला आया कि विवाहिता को जला करके मार दिया गया, क्या मामला है? कल जैनपुर के ग्राम हरई इस्माइलपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में वैधानिक कार्रवाई करते हुए नियमानुसार पंचायतनामा भर के उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। मायके पक्ष वालों की तहरीर पर एक दहेज मृत्यु का मुकदमा लिखा गया है, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है। संबंधित को कड़ी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया जा चुका है। कुछ गिरफ्तारी अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जैसे भविष्य में गिरफ्तारी की जाएगी साक्ष्य संकलन के पश्चात। ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने में एवं ओबीसी आरक्षण की क्रीमी लेयर शर्तों में सजेशन बदलाव कर ओबीसी आरक्षण से बड़ी संख्या में बाहर किए जाने से नाराज युवाओं ने ओबीसी महासभा के बैनर तले आज कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उनका कहना था कि संवेदनशीलता के कारण संपूर्ण ओबीसी समाज आक्रोशित है। अतिशीघ्र ओबीसी कॉलम जोड़ने जाने की कार्रवाई सरकार सुनिश्चित करे, नहीं तो आगे और बड़े आंदोलन किए जाएंगे। उनकी मांगों को लागू करते हुए राज्य विधानसभा और लोकसभा सीटें आरक्षित मंडल आयोग की अनुशंसा के आधार पर आरक्षित की जाए, तो ये आशा मैदान क्रीमी लेयर की शर्तों में जो सजेशन सैलरी कृषि सहित अन्य आय को जोड़कर भविष्य में ओबीसी वर्ग की बहुत बड़ी आबादी को ओबीसी आरक्षण से बाहर किए जाने की सरकार की मंशा का संगठन पुरजोर विरोध कर रहा है। जयप्रकाश राजभर, जिलाध्यक्ष आजमगढ़, ओबीसी महासभा। अच्छा, आज किस मांग को लेकर आप यहाँ पे आए हैं? मांग ओबीसी महासभा की ये मांग है कि सरकार द्वारा हमारी मांग है कि ओबीसी में जितनी जातियाँ आती हैं उसकी जनगणना हो और जातिगत जनगणना हो। जनगणना के हिसाब से उसको जो भी आरक्षण बने उसका हक उसको मिलना चाहिए। 69,000 भर्ती में क्या है? अब 69,000 भर्ती में भी बैकवर्ड समाज को कोई तजब्बो सरकार द्वारा नहीं दिया गया। इसको भी ध्यान में रख करके इस समाज को भी आगे बढ़ाने के लिए इस समाज को भी सरकार को देखना उसका कर्तव्य बनता है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि जब सबका साथ सबका विकास के साथ पर सरकार तर्ज पर चल रही है तो सबका साथ सबका विकास होना निश्चित है। जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस, सिविल लाइंस, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम बनकट, तहसील सगड़ी में एक व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के PWD सर्किट हाउस के 250 मीटर रेडियस का क्षेत्र सिविल लाइंस नगरपालिका परिषद आजमगढ़ कंटेनमेंट जोन होगा। दीवानी न्यायालय आजमगढ़ का परिसर PWD सर्किट हाउस से सटा होने एवं 250 मीटर रेडियस अंदर होने के कारण कंटेनमेंट जोन में होगा। इस प्रकार बनकट बाजार, राजस्व ग्राम बनकट, तहसील सगड़ी का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 से बचाव और रोकथाम के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में जितने भी कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस हैं उनकी क्लोज कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की ट्रेसिंग करने के लिए नई टीम का गठन किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, ग्राम विकास, पुलिस विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को दायित्व प्रदान किया गया है। इसके लिए कंट्रोल रूम की स्थापना BSA कार्यालय में की जा रही है। इसमें सबसे पहले सभी 98 एक्टिव केसों के क्लोज कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को चिन्हित कर उनकी सैंपलिंग कराई जाएगी एवं होम क्वारंटाइन के नियमों को और सख्ती से लागू किया जाएगा। आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद ने रविवार को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। TV20 न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के पशुओं के लिए सरकार की तरफ निःशुल्क चारा की व्यवस्था की जाती है, इसके लिए ठेका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इसका ठेका हो चुका है और क्षेत्र में बाढ़ भी आ चुकी है, लेकिन चारे के ठेकेदार अभी तक नहीं आए हैं, जिससे पशुओं के लिए चारे की समस्या हो रही है। उन्होंने नाविकों की समस्या पर बताया कि पिछली बाढ़ में जिन प्राइवेट नाविकों ने अपनी नाव से बाढ़ पीड़ितों की सेवा की थी, आज तक उन नाविकों का सरकार ने भुगतान नहीं किया, इसलिए वह नाविक इस बार अपनी नाव बाढ़ में लगाने के लिए तैयार नहीं है। फिर उनसे बात करके उनको तैयार किया जा रहा है। इस दौरान विधायक ने दर्जनों गाँव का दौरा किया, साथ में भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं नफीस अहमद। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के महाराजगंज ब्लॉक के सहदेवगंज ढाला पर, जहां हमारे सामने मौजूद हैं क्षेत्रीय विधायक समाजवादी पार्टी के नफीस अहमद जी। हम जानना चाहेंगे यहाँ आने का इनका पर्पज क्या है। विधायक जी, यहाँ आने का मामला ये है कि लगातार जो है पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है और क्षेत्र की जो बाढ़ के वक्त जो तैयारियाँ होती हैं कि किस तरीके से बाढ़ में हम जनता को सहूलियत पहुंचा सकते हैं, उनके ज़रूरत का सामान उनको उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन सब चीज़ों का निरीक्षण करना अपने सम्मानित साथियों के साथ। और कल मैं DM से भी 12:30 बजे मेरी मुलाकात होगी और इन सारी समस्याओं को लेकर उनसे बात होगी, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बाढ़ के समय में जो है दवाओं का अभाव अक्सर कर हो जाता है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो जहरीले जानवर जो है वो सूखी जगह पे पहुंचते हैं, जिससे वो आए दिन ये शिकायतें मिलती हैं कि लोगों को सांप, बिच्छू इस तरीके के जानवर काट लेते हैं। तो उनकी दवाएं यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि उन दवाओं की उपलब्धता हमारे CSC PSC पे है कि नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि जो हमारे ग्रामवासी उधर रहते हैं बंधे के नीचे, तो जब बाढ़ का दबाव जैसे बढ़ेगा तो उनके जो जानवर हैं उनका जानवर का जो भूसा है वो मिलना चाहिए। जो मुझे अभी तक ज्ञात हुआ है कि भूसे का जो टेंडर इस बार कराना था, टेंडर कराया गया, लेकिन कोई भी टेंडर उसमें ठेकेदार आया नहीं है, क्योंकि समस्या किसी दिन भी विकराल रूप ले सकती है। इसलिए इन सारी छोटी चीज़ों पे तैयारी इन सारी चीज़ों की होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ी एक समस्या रहती है नाव की। अभी तमाम नाव चालक से मेरी भेंट हुई, उनका ये मानना है कि पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो तमाम ऐसे साथी हैं जिनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ। तो भुगतान ना होने की वजह से उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर चिंता है कि अगला भुगतान होगा कि नहीं होगा। और अगर ये चिंता प्रशासन शासन की तरफ से दूर नहीं की जाएगी तो हो सकता है नाविक अपनी नाव लेकर सहायता को ना आए। तो इन सारी चीज़ों पे जो छोटी छोटी हैं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब बाढ़ का दबाव होता है तो वहाँ गांव के लोगों के साथ समस्या खाने पीने की आ जाती है। तो वो राशन किस तरीके से यहाँ मुहैया कराया जाएगा, कैसे पहुँचेगा, इन सारी चीज़ों को लेकर जानकारी लेकर प्रशासन से कल बात होगी। और मैं ये पूरी हमारी जो प्रतिनिधि मंडल है, ये हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इन सारी व्यवस्थाओं को किया जाए, जिससे बाढ़ की विकराल रूप लेने से पहले हमारी तैयारी पूरी हो जाए कि जनता को कोई आप देख रहे हैं TV20 न्यूज़।
खबरों का सिलसिला टीवी 20 न्यूज बने के रहिए लिए हमारे साथ। सहदेवगंज से रोशनलाल। नेपाल की पहाड़ियों में पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश ने यूपी के मैदानी इलाकों की मुश्किलें बढ़ा दी है। महाराजगंज की निचलौल हल्द तहसील के लक्ष्मीपुर बुझावा में चंदन नदी के ओवरफ्लो होने से नदी का पानी गांव में घुस गया। लोगों को सुरक्षा के लिए बनाई गई पुलिस चौकी को भी पानी ने अपनी आगोश में ले लिया। हर तरफ पानी ही पानी फैल गया। लोगों के घरों में पानी घुस गया। क्या स्कूल, क्या घर का किचन, सब जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो एकाएक नेपाल के नदियों से पहुंचे पानी से अब भारतीय लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। तो ये प्रशासन भी बाढ़ जैसी हर स्थिति से निपटने के लिए हर तरह की तैयारियां पूरी कर ली है। जिलाधिकारी ने बताया कि नेपाल से निकलने वाली नारायणी नदी में लगभग 2,75,000 क्यूसेक पानी बढ़ा है, जिससे नेपाल से महाराजगंज जिले में नेपाल से निकलने वाली कई नदियों और नाले में पानी बढ़ा हुआ है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में कई गांवों के खेतों में पानी आ गया है। पानी का स्तर बढ़ा है, लगभग 2 लाख से ज़्यादा क्यूसेक पानी वहाँ पे आ रहा है। 2,75,000 की प्राप्त सूचना आई थी। उसके बाद से हमारी नदियों में भी कहीं कहीं पे पानी बढ़ा हुआ है और सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, जो उनसे लगे हुए गाँव हैं, उनमें खेतों में कहीं कहीं पे पानी की सूचना मिली। बहुत ही कम है अभी उसका जो सूचना हमें आई है, 1-2 जगहों पर ही आई है। उस पर कार्य किया जा रहा है स्थानीय प्रशासन के द्वारा। वहाँ पे SDM और इरिगेशन के डिपार्टमेंट के लोग भी गए हुए हैं, वो मौके पर सर्वे कर रहे हैं। अगर उसमें कुछ कार्य करने की जरूरत होगी तो तत्काल किया जाए। और अभी कोई वैसी गंभीर सूचना कहीं से भी नहीं है। ज़्यादा जल भराव अभी नहीं हुआ है कहीं भी, और पानी का जो स्तर है अभी खतरे से नीचे। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज बाजार के व्यापारियों ने सोमवार को थाना प्रांगण बिलरियागंज में पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से थानाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर अपनी दुकान को प्रतिदिन खोलने की मांग किया है। व्यापारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री के नए रोस्टर के अनुसार यदि हफ्ता में 5 ही दिन दुकानें खुलेंगी तो हम लोगों की दुकान पश्चिम दिशा में पड़ती है, जो नियमानुसार हफ्ते में 2 ही दिन खुल पाएंगी, जिससे हम व्यापारियों का काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोगों को प्रतिदिन दुकान खोलने की अनुमति दी जाए, जिससे हम व्यापारियों का आर्थिक संकट दूर हो सके। गुप्ता, हमने क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या है कि हम मुख्य मार्ग, जो आजमगढ़ मुख्य मार्ग है, उसके पश्चिम दिशा में हम व्यापार करते हैं। जिलाधिकारी महोदय के अनुसार हमारी दुकान रोस्टर के हिसाब से सिर्फ 2 दिन खुलने की बन रही है। कल CM का आदेश आया कि लगातार 5 दिन दुकान खुलेंगी। उसी के आधार पर हमने दुकान खोला, लेकिन स्थानीय SO ने ये कहा कि अभी हमारे पास कोई आदेश नहीं आया, इसलिए आप लोग दुकान बंद करते हैं। इसी समस्या को लेकर हम SO साहब के समक्ष एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। यूपी शासन के निर्णय आने के बाद व्यापारियों को यह आस लगी थी कि अब मुख्यमंत्री का जो आदेश हुआ है उसमें 5 दिन दुकानें खुली रहेंगी। व्यापारियों का कहना है कि सप्ताह के 5 दिन दुकानें दोनों तरफ खोली जाए। इसी मांग को लेकर आज व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला, लेकिन यदि पूर्व के आदेश को माना जाए तो अब दुकानें महीने में सिर्फ 10 दिन ही खुल पाएंगी। इसको लेकर आज व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से वार्ता करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। तो वही व्यापारियों ने कहा कि 3 दिन लॉकडाउन के बाद योगी सरकार ने सप्ताह के 5 दिन ही दुकान खोलने का आदेश जारी किया है। तो वही अब दुकानदारों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि 3 दिन एक तरफ दुकान खोलेंगी और 2 दिन एक तरफ दुकान खोलेंगे, जिससे महीने में सिर्फ 10 दिन ही दुकानें खुलेंगी। लोग अपने इसी मामले को लेकर आज व्यापारी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला है। इस बाबत क्या कुछ कहा व्यापार मंडल के नेताओं ने, आपको सुनवाते हैं। पद्माकर लाल वर्मा और गुरपुर सेठ व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष आजमगढ़। आज किस मांग को लेकर आए? हम लोग आए हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय की हैं कि पहले नियम था कि दुकान जो है 3 रोज़ पूरब खुलेगा, 3 रोज़ पश्चिम खुलेगा, इसी तरह 3 रोज़ उत्तर खुलेगा, 3 रोज़ दक्षिण खुलेगा। बीच में जो है लॉकडाउन हो गया, 2 दिन का शनिचर आतवार का माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन कर दिया। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक गाइडलाइन आया कि 2 दिन जो है शनिचर आतवार जो है पूरा लॉकडाउन रहेगा और 5 दिन दुकानें खुलेंगी। तो हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय की हैं अपनी एक मांग लेके आए हुए हैं कि हम लोग की दुकानें 5 दिन खुलनी चाहिए, जो कि मुख्यमंत्री जी के गाइडलाइन के हिसाब से जो है व्यापारी दुकान खोल रहा है तो प्रशासन वाले जाके दुकान बंद करा रहे हैं। तो हमारी यही निवेदन है माननीय DM साहब से कि 5 दिन दुकान खुलवाए, इसलिए 2 दिन दुकान खुलवा के व्यापारी क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हम 2 दिन दुकान खोलेंगे, इस तरह हम महीने में 1 हफ्ता 8 दिन सिर्फ दुकान खोलेंगे। अब 8 दिन दुकान खोलने के बाद जो है हम 1 महीने का तनख्वाह कर्मचारी को कहाँ से दे पाएंगे। शासन सत्ता सरकार ये कह रही कि आप लोग जो है
बेरोजगारों को काम दीजिए, जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनको आप काम दीजिए, रोजगार दीजिए, हम कहाँ से दे पाएंगे। आज क्या आप डीएम साहब से मिलने आए हैं? हम लोग डीएम साहब से मिलने आए हैं कि हम लोग की दुकानें जो है 5 दिन खुलवाई जाए। यही हमारी जिलाधिकारी महोदय से मांग है कि 5 दिन दुकान व्यापारियों को खुलवाई जाए, दोनों पटरी के व्यापारी जो है हमारे संतुष्ट हों। व्यापार मंडल के लोग जिलाधिकारी साहब मिलने आए, क्या उद्देश्य है? प्रदेश सरकार का नया आदेश कल आया है कि दुकानें या लॉकडाउन शनिवार और रविवार रहेगी। शेष दिन सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक दुकानें प्रतिष्ठानें खुलेंगी। उसके नियम का आग्रह पर उस आदेश के मुताबिक हम आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं कि हम लोग के दुकान के सोमवार से शुक्रवार तक टाइमिंग बांध दिया जाए कि कब से कब तक दुकानें खुलेंगी और व्यवस्था दिया जाए सभी दुकानों के लिए। तो जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस, सिविल लाइंस, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम बनकट, तहसील सगड़ी में एक एक व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस के 250 मीटर रेडियस का क्षेत्र सिविल लाइंस नगर पालिका परिषद आजमगढ़ कंटेनमेंट जोन होगा। दीवानी न्यायालय आजमगढ़ का परिसर पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस से सटा होने एवं 250 मीटर रेडियस अंदर होने के कारण कंटेनमेंट जोन में होगा। इस प्रकार बनकट बाजार, राजस्व ग्राम बनकट, तहसील सगड़ी का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। होमगार्ड ऋषिकेश पांडे का मकान गिरने से महिला दबकर घायल हुई, परिवार बेघर हुआ और पीड़ित का फोन अभी क्षेत्रीय लेखपाल नहीं उठा रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। जानकारी देते हुए पीड़ित होमगार्ड ऋषिकेश पांडे ने बताया कि उनका कच्चा मकान है। शनिवार की रात उनका पूरा परिवार मकान के भीतर सो रहा था। इसी बीच तेज बारिश होने लगी। देर रात उनका मकान गिरने लगा। किसी तरह से पूरा परिवार मकान से बाहर भागकर निकल गया, मगर जब तक उनकी धर्मपत्नी दुलारी पांडे 65 वर्षीय मकान से बाहर निकलती, उसी बीच मकान पूरी तरह से गिर गया, जिसमें वो दबकर घायल हो गई। इसके बाद परिवार वालों ने उन्हें किसी तरह से बाहर निकाला। सुबह होने पर जब ऋषिकेश पांडे ने सूचना देने के लिए क्षेत्रीय लेखपाल को फ़ोन किया तो लेखपाल का फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। नहीं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? ऋषिकेश पांडे सर। गांव कौन सा है? जमीलपुर। क्या हुआ सर? एक बारिश हुई और बादल चमका, बिजली चमकी, उसी में हमारा मकान गिर गया और चावल था, गेहूँ था, सब सत्यानाश हो गया और इसी से बहुत अच्छा हो गया। इसकी सूचना और घाव भी लग गई। लेखपाल को सूचना दिया, लेखपाल आए नहीं, फोन नहीं उठा रहे हैं। सतीश हैं मेहनगर की। इस समय आप रहते कहाँ हैं? हम सर घर पर रहते हैं। जैसे इसके अलावा और कोई मकान है या? और कोई मकान नहीं है, यही सर है। किस ब्लॉक में पड़ेगा जी? महाराजगंज में सर। उनके अलावा किसी उच्च अधिकारी को आप सूचना दिए? अभी सर तो आपको यही सूचना दिए और लेखपाल को दिए, सेक्रेटरी को खोजे, वो मिले नहीं अभी तक। ग्राम प्रधान को सूचना गई? ग्राम प्रधान तो सर वहाँ भट्ठा पर रहते हैं, भेंटें नहीं होती है। कौन है ग्राम प्रधान? उदारा हैं, उनकी प्रभावती माता हैं।